Hello and welcome and a very good afternoon. You're watching Election Premier League with me, Siddharth Talia. Now, the battle lines are drawn and the stakes have never been higher. Welcome to the special show. 4 states, 1 union territory and 1 big verdict, which will be out on the 4th of May. And the entire nation is watching closely. From the heartland to the hustings, this is where the political contest will be shaped. Times Now is on ground zero with its biggest team of reporters, bringing you every development, every shift and every key moment. We track the voters' pulse, we track the mood on the ground, and we bring you the story as it unfolds. Let's begin with the state of Assam, where the state's tea gardens are not just the backbone of India's tea industry, they're also home to one of the world's, or in fact one of the country's most politically significant communities in the state of Assam. That's the tea tribes. Spread across more than 800 tea estates, the community represents a crucial vote bank, influencing dozens of constituencies in Assam. In recent years, the political spotlight has shifted towards them, particularly after Prime Minister Narendra Modi initiated the process of granting land pattas to tea garden workers. And during his recent visit to Dibrugarh, he spent time with the women workers working in the tea gardens there, learning how tea leaves are actually plucked, and also took selfies with them. And as Assam heads into another electoral battle starting on, of course, the 9th of this month, the big question remains, where will this silent voter actually swing? My colleague Anamika has filed this report. For generations, thousands of workers here have begun their day the same way, stepping into the plantations with baskets tied to their heads, carefully plucking the tender tea leaves that make Assam famous across the world. But beyond the tea bushes lie another story, a story of identity, land rights and political recognition. The tea tribe community, whose ancestors were brought to Assam more than 150 years ago during the British colonial era, has long been one of the most influential yet often overlooked sections of the electorate. For decades, one of the biggest issues faced by tea garden workers was land ownership. Despite living in these areas for generations, many families did not possess legal ownership of the land they lived on. Recently, the central government, led by PM Modi, initiated the process of distributing land pattas to the tea tribe families, a move seen as a major step towards addressing a long-standing demand. ये वाला सरकार आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग ये भाजपा सरकार ही देखना चाहते हैं, मोदी जी का। मोदी जी का? मोदी जी। इतना प्यार क्यों मोदी जी से? बहुत प्यारा लगता है। हम लोग को बहुत आगे ले गया है वो। अभी बहुत सामान कुछ दे रहा है और सब कुछ सुविधा दे रहा है, रास्ता पदली सब बना दिया है। तरक्की हो रहा है? हाँ, तरक्की हो रहा है। अच्छा, बगान में बहुत तरक्की किया है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने काफी सारा काम किया इसके ऊपर, आपको मिला है? आपको क्या लग रहा है, इसमें काम हो रहा है या फिर सच में लैंड पट्टा मिल रहा है? हाँ, मिल गया है। हमारा भी लैंड पट्टा सबको मिल रहा है। आपको मिला है? हाँ, मिला है। खुश है आप? खुश है हम। आपकी वाइफ है? हाँ है। काम करती है चाय बगानों में? करते हैं। वो इन चाय बगानों की जो डेली जो वेजेस है ये बढ़ रहा है क्या? हाँ, 30 रुपया करके बढ़ा दिया है 1 अप्रैल से। अभी कितना मिलता है? अभी टोटल नंबर कितना है? कितना? 280 रुपया मिल रहा है पर डे का। 280 मिल रहा है। खुश है आप लोग? खुश है हम लोग। जितना हम लोग का टी ट्राइब्स का जो रास्ता है, क्वार्टर, लैंड, सबको सुविधा दिया है। सब दिया है? सब दिया है। बहुत शुक्रिया। और हाँ बोलिए। हम लोग का हजरा था जो 250 करके था, अभी इस बार अप्रैल महीना से और 30 रुपया बढ़ा दिया है। अच्छा, आपसे एक बात सुनना चाहेंगे। 250 करके था, 30 रुपए और बढ़ा दिया गया। लेकिन भाजपा सरकार आने से पहले 10 साल पहले आप लोगों का पर डे कितना था? हम लोग का 137। तो 137 से 280 हो गया। अभी 137 कांग्रेस के सरकार में था, अभी 250 करके मिलता है, 30 रुपए और बढ़ा दिया गया है। तो भाजपा के सरकार आते हुए उनको 280 करके मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे 137 बोले। अब 137 करके ये उनका डेली वेजेस था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे और आप लोगों के महिलाओं के साथ बहुत सारे चाय पत्ते खींचते हुए, ऐसे सेल्फी लेते हुए, है ना, बहुत सारे, वो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा प्यारा बात बोला है।
हैं, आगे भी हम लोग का फिर ले जाएगा बोला है। बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ाओ, हम लोग किसी को पुलिस बनाएगा, किसी को क्या बनाएगा बोल के इसे हम लोग को इतना भाव दिया, इतना अच्छा लगा हम लोग को। देखने में तो हमको सब अच्छी लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये सब नहीं था। अभी तो जैसे हो रहा है, अभी देख के भी अच्छा लगता है। हम लोग का ये रास्ता पहले पूरा पानी से भर रहा था, अभी तो ये मेन नाली हो गया है। अब पानी नहीं होता है। During his recent visit to Dibrugarh, Prime Minister Modi also made a symbolic gesture, spending time with tea garden women workers. He walked through the tea estates, observed how tea leaves are plucked, interacted with workers, and even clicked selfies with them. For many in the community, it was seen as a moment of recognition. अभी आए दिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री भी असम पे आए थे। और लैंड पट्टा की अगर बात करें, टी ट्राइब का जो लैंड पट्टे की बात है, काफी दिन से ये पेंडिंग था। हाल ही में बहुत सारे लोगों को, आपके जनजाति, टी ट्राइब के जनजातियों को लैंड पट्टा दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, किस प्रकार से ये हुआ है, और भी लोग हैं उनको भी आने वाले दिल पे मिलने वाले हैं क्या ये टी ट्राइब्स वाला जो लैंड पट्टा है? नहीं, देखिए, ये जो डिमांड था पट्टा के लिए, लैंड पट्टा के लिए, जमीन का अधिकार के लिए, ये डिमांड एक कॉमन डिमांड था। कहाँ का जमीन देना है, किसको देना है, वो स्पेसिफिकली हम लोग शायद कभी हम लोगों ने इस तरह से कहीं बोला नहीं है। लेकिन जब समय आया तो मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने बातचीत किया, अलग अलग संगठनों में बातचीत किया, तो तब ये निकल के आया कि अभी किसी को अगर आपको ज़मीन देना होगा तो ज़मीन में उसका कब्जा होना चाहिए, या फिर वो जो कहे आप उसका पोजीशन होना चाहिए। तो पोजीशन अगर होगा नहीं तो आप, असम में तो इतना ज़मीन नहीं है कि कहीं लेके किसी को बैठा देगा। हमारे जो चाय बागान में रहने वाले चाय जनजाति या फिर आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, ये करीब 200 सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ से माइग्रेट होके सारे लोग यहाँ चाय बागान में काम करने के लिए आए थे। और जब आए थे अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आए थे, खाली यहाँ आए थे। तो यहाँ 200 साल रहने के बाद आज भी उनके पास अपना ना ज़मीन है ना मकान है। तो तब उसके बाद ये मुद्दा आया कि कैसे इनको ज़मीन और उनका मकान का हक दिया जाए। और फिर जो सीलिंग एक्ट था उसको अमेंड किया गया। अमेंड करने के बाद जितने भी चाय बागान में लेबर लाइन्स है उसको सरकारी ज़मीन बनाया गया, और अभी मट्टी ज़मीन का पट्टा देने का जो प्रोसेस है वो चालू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से गत 13 तारीख को गुवाहाटी में पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमोनियल अनुष्ठान हुआ। उनके हाथों से कुछ लोगों को पट्टा दिया गया, और अभी तक हम लोगों ने करीब 28,000 परिवारों को लैंड पट्टा देने का काम किया है। और करीब असम में आंकड़ा अगर हम देखें तो 3 लाख कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली इससे ज़्यादा है, करीब 5 लाख परिवार होंगे जिनको इस डिसीजन के बाद जमीन का अधिकार मिलेगा। From welfare schemes to land rights and wage issues, the concerns of tea garden workers remain central to Assam's political narrative. As campaigning reaches its peak, the big political contest is not just being fought in rallies and speeches, it is also unfolding quietly inside these tea estates. Because when the ballots are counted, the silent voter of Assam's tea gardens could well decide the winner. चुनाव का माहौल है, अगर एक तरफ वादे है तो एक तरफ है आरोप। उसी के साथ साथ फिलहाल मैं मौजूद हूँ लखीमपुर में, और उसी के साथ साथ मेरे साथ लखीमपुर के विधायक मानव डेका जुड़ गए हैं। मानव डेका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। चुनाव का आपको भी शुक्रिया कि नॉर्थ असम जैसा जगह पे जहाँ रीजनल मीडिया ही नहीं आते, आप टाइम्स नाउ आ गया अभी, इसका मतलब कुछ तो हो रहा है लखीमपुर में। सवाल आपसे ये भी है, जैसे आपने बोला है कि असमिया जो मुस्लिम है उनसे लोगों को तकलीफ नहीं है, भाजपा को तकलीफ नहीं है, सबको तकलीफ नहीं है। भाजपा के क्यों तकलीफ होगा? नहीं, आप समझ नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को तकलीफ नहीं, ये आपने बोला है, लेकिन उसी के साथ साथ आप लखीमपुर टाउन 80% असमीज मुस्लिम लोगों का प्रॉपर्टी है। कोई भी असमीज मुस्लिम को जाके पूछिए उन लोगों का ज्यादा जमीन किसने हड़प लिया,
जो खेती का जमीन था कौन बैठा हुआ है, वो उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं, मैं आपकी बातों पे आ रही हूँ, मेरा भी बात वही था, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे आपने बोला है कि मियाँ आके ये जगह को हड़पने की कोशिश करते हैं, उससे आप लोगों को तकलीफ है। लेकिन हाल ही में अभी AIUDF के स्टार कैंपेनर OSC जी आए थे। OSC आके बहुत सारी अपनी उनका जो स्पीच था, स्पीच में भाषण दिए, उसी के साथ साथ सारे मियाँ हमारे साथ एक साथ बोलिए, और ये भी बात बोला था कि मियाँ जिंदाबाद। तो असम में आके ऐसे प्रचार, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब देखिए, ओवैसी जैसा आदमी के बारे में असम में बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओवैसी का पॉलिटिक्स क्या है, टोटली कम्युनल पॉलिटिक्स है। उसका भाई ने क्या बोला था, 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो हम लोग क्या, तो ये एक्चुअली ये लोग इंटरनेशनल एक एजेंडा लेके चलते हैं। ओवैसी कभी भी इंडियन का बात नहीं मतलब हिंदू का बात नहीं बोलेगा, वो एंटी हिंदू है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ओवैसी के बारे में, असम का जनता को मालूम है कि ओवैसी जैसा आदमी को कैसे जवाब देना चाहिए, दे देगा उसको, आप टेंशन मत। Well,